Hello students, welcome to this video. In our earlier videos, we have learned the geometrical meaning of zeros of a polynomial, and today we are going to learn a new concept, that is the relationship between zeros and coefficient of a polynomial. First you will discuss about linear polynomial, then you will discuss about quadratic polynomial. Let's see for the linear polynomial. Linear polynomial पे जीरो एंड उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है पहले ऑब्जर्व करेंगे. यू नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear polynomial is ax plus b, and here you know that condition is a does not equal to 0. And what about the zeros of this linear polynomial? In our earlier videos we have also determined that the zeros of linear polynomial ax plus b is minus b by a, and you know that minus b represents negative of the constant term and a is the coefficient of x. So let's see in example. Suppose you have 2x plus 3 as the linear polynomial, then what will be the zero? You can easily say that negative of the constant term, that is here plus 3 is given, so we will take minus 3 and it should be divided by a, that is the coefficient of x, that is 2. So zeros of 2x plus 3 will be minus 3 upon 2. And suppose you have 4x minus 7, then what will be the zeros of this polynomial 4x minus 7? You will take minus 7 is there, and you'll have to take minus b, that means minus of the minus 7, that will be plus 7. That means you have to change the sign of the constant term. So 7 and it should be divided by 4. 7 upon 4 will be the zeros of 4x minus 7, and this 7 upon 4 is minus b by a. Okay, so in linear polynomial, the relationship between the zeros and coefficient of polynomial is zeros is minus b by a. You can write this one is its relationship. And for quadratic polynomial, you know that in a quadratic polynomial we can find maximum two zeros, and a quadratic polynomial has standard form ax square plus bx plus c, and a does not equal to 0. Here a, b, c, these three numbers are real numbers. Okay, a, b, c are three real numbers. C is called the constant. C is called the constant term. A is the coefficient of x square. B is the coefficient of x. Let's try to find the zeros of one quadratic polynomial. From this example, you will try to understand the relationship between the zeros and coefficient. Suppose we have to find the zeros of 3x square plus 5x minus 2. यहाँ पे हमें 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से सपोज हमें जीरो निकालना है, और यहाँ पे हम जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशन ढूंढेंगे. तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं कि भाई जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसको आप इक्वेशन बनाते हैं जीरो के साथ. You have to equate this quadratic polynomial as zeros to find the zeros of this quadratic polynomial. So 3x square plus 5x minus 2 equal to 0, and you know that we need to search two numbers such that product of this two number will be minus 6. 3 into minus 2, that is minus 6, and sum of these two numbers will be plus 5. So what are the possibility? You can take 6 and minus 1, which product will be minus 6 and which sum will be 5. So by taking 6x and minus x in place of 5x, we will be able to factorize this 3x square plus, just break it, 5x as 6x minus x, because 6 and minus 1 are the numbers to his. Suppose we will add, we will get 5, and product of these two number will be minus 6. So in place of 5x, just you have to write 6x minus x, and from the first two term 3x square and 6x, पहले दो टर्म से जितने भी कॉमन जा रहे हैं, जैसे कि 3 and 6 में से 3 को ले सकते हैं, x स्क्वायर एंड x में से लोअर डिग्री वाला टर्म x है तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं. तो 3x कॉमन लेंगे तो पहले टर्म में बच जाएगा x, एंड सेकंड टर्म में आपका आ जाएगा ओनली 2. अभी देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x. तो दोनों टर्म से, फर्स्ट दो टर्म से 3x को कॉमन लेके जितना भी बाकी है उसको ब्रैकेट में, एंड इन द थर्ड एंड फोर्थ टर्म, इन द थर्ड एंड फोर्थ टर्म हमें ऐसे कुछ कॉमन लेना है जहाँ से कि फिर से इस ये वाला जो x प्लस 2 एक फैक्टर यहाँ पे जो निकल के आया है बिल्कुल यहाँ पे भी आ जाए. तो यहाँ से इन दोनों ही टर्म से हमें -1 कॉमन लेना है. सो -1 कॉमन लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये दो आपके जो फैक्टर्स फर्स्ट दोनों टर्म से एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म से जो भी फैक्टर्स निकला है एक कॉमन आएगा. सो लेट्स टेक इट अगेन
x+2 दोनों में से कॉमन ले जाते हैं तो 3x - 1 वहाँ पे होगा। एंड अभी दो फैक्टर्स यहाँ पे हमें मिल चुके हैं एंड वो इक्वल टू 0 यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो दोनों फैक्टर्स में से हम इसको हम ले सकते हैं कि भाई x+2 आपका 0 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज 3x - 1 भी 0 यहाँ पे हो सकता है। सो फ्रॉम x+2 इक्वल टू 0 वी कैन फाइंड x इक्वल टू -2 एंड फ्रॉम 3x - 1 इक्वल टू 0 वी कैन फाइंड x इक्वल टू 1/3। सो हियर x equal to -2 and x equal to 1/3 are the solution for 3x square plus 5x minus 2 equal to 0, and for the polynomial 3x square plus 5x minus 2, these two numbers will be the zeros. These two numbers will be the zeros. That means the zeros of 3x square plus 5x minus 2 और -2 एंड 1/3। जब आप 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का जीरो निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको दो जीरो मिलेंगे यहाँ पे। x इक्वल टू -2 आपका एक जीरो होगा और दूसरा होगा x की वैल्यू 1/3। दैट मीन -2 एंड 1/3 दीज आर द टू जीरोज फॉर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसके लिए ये दो जीरो हैं। तो ये दो जीरो निकालने वाला टेक्निक तो आप पहले से जानते थे। तो यहाँ पे दो जो जीरो निकाले हैं उनके साथ बस हमें यहाँ पे ढूंढना है कि भाई जो पोलिनोमियल में जो कोफिशिएंट सारे बच गए हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट, इन सारे कोफिशिएंट के साथ उसका क्या रिलेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे दो जीरो को जो मिले थे, जो जीरो मिले हैं यहाँ पे, चलिए उनको हम पहले ऐड करते हैं कि -2 प्लस 1/3 इन दोनों को अगर ऐड कर दी जाए तो आपको मिलता है एक सम -5/3। हाउ डिड यू गेट दैट? -2 प्लस 1/3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × -2 दैट इज -6 और ऊपर से जो +1 है उसको ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3। सो -5/3 इन दोनों का सम आ रहा है। एंड ये चीज़ें आप यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व कीजिए। अभी आपके पास पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 एंड जीरोज की जो सम हो गए वो हो गए -5/3। देखिए ये दोनों नंबर आपको इसी पोलिनोमियल में भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि भाई 5 यहाँ पे x की कोफिशिएंट है, 3 आपका x स्क्वायर की कोफिशिएंट है। बस यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ चुका है। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सम ऑफ इट्स जीरोज जो हो रहा है यहाँ पे इन दोनों जीरोज की सम -5/3 ये बिल्कुल आपके पोलिनोमियल में भी मौजूद था। एंड पोलिनोमियल में जो 5 एंड 3 थे कहाँ पे थे? 5 वॉज इन द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 3 वॉज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बस यहाँ पे आपका एक नेगेटिव साइन आएगा। दैट मीन्स सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज negative of the coefficient of x by coefficient of x square, or in short we can say that is -b/a। ओके, सम ऑफ इट्स जीरो जो होगा वो -b/a होगा, या फिर आप इस तरह से लंबे से लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। लाइकवाइज सपोज आपके पास अभी ये दोनों जीरोज हैं एंड हम उनका प्रोडक्ट निकालते हैं और प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन होगा वो यहाँ पे देखेंगे। सो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। -2 × 1/3। देखिए -2 × 1 -2 और नीचे हो जाएगा 3। सो यहाँ पे -2 एंड 3 आप हूबहू देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स यहाँ पे इसी पोलिनोमियल पे भी हैं। -2 जो है आपका वो एक कंस्टेंट टर्म है एंड 3 जो है उसके नीचे वो आपका x स्क्वायर की कोफिशिएंट है। तो भाई हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है उसकी रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या बन सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर आप निकाल रहे हैं तो आप कंस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो भी आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज c/a। c कहाँ पे होता है? c आपका कंस्टेंट टर्म होता है, a कहाँ पे होता है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो यही रिलेशन है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच। यहाँ पे और एक बार हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। ओके, एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की आप जीरो निकाले यहाँ पे, दोनों जीरो निकालने के बाद दोनों को आप ऐड करके देखें कि भाई उसके साथ कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं, यहाँ पे जो सारे कोफिशिएंट है उनके। तो आप ऐड करने के बाद ये ऑब्जर्व किए कि दोनों को ऐड करेंगे, मतलब जीरोज को ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और हम ये बता सकते हैं कि सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू c/a। तो ये दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ पे कंक्लूजन में लिखेंगे या फिर एक फैक्ट में लिखेंगे। फॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c where a doesn't equal to 0
whose zero chars suppose alpha and beta, then we will have alpha plus beta will be minus b by a and अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पे आपके पास अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और आपको ये पूछा जाए कि दोनों की जीरो की सम, दैट मीन्स सम ऑफ इट्स जीरोस, ओके, सम ऑफ इट्स जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स में मिले थे आपको, इसके पहले एग्जाम्पल्स में मिले थे आपको कि -2 एंड 1/3। सो अल्फा को आप ले सकते हैं कि भाई -2 एंड बीटा को ले सकते हैं 1/3। तो यहाँ पे हम उसको जनरली एक रूल के हिसाब से लिख रहे हैं कि आपके पास अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस, then the value of alpha plus beta will be minus b by a, okay, sum of its zeros will be equal to minus b by a। माइनस बी कहाँ पे होगा, देखिए भाई बी या बी जो है यहाँ पे एक्स की कोफिशिएंट होगा, उसका आपको नेगेटिव फॉर्म लेना है एंड नेगेटिव फॉर्म मीन्स जो भी होगा वहाँ पे जस्ट उससे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा उसका, एंड बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से आपको उसको डिवाइड करना है एंड अगेन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, कंस्टेंट टर्म को ए से आपको डिवाइड करना है। तो ये रिलेशनशिप है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और सम ऑफ इट्स जीरोस और सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज सी बाई ए। सो दिस इज द फैक्ट एंड यही उसका रिलेशनशिप है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन आपके दो तरह के बन सकते हैं इसमें कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा एंड वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा कि भाई आप ये चीज़ को वेरीफाई कीजिए। तो टेक्निक आपका ये रहेगा कि आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि आप पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा क्वेश्चन पे आप उसका जीरो निकालेंगे अलग से, जीरो निकलने के बाद आप सम ऑफ इट्स जीरो करके दिखाएंगे कि ये माइनस बी बाई हो रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो करके दिखाएंगे कि ये सी बाई ए के साथ बराबर हो रहा है। या फिर आप यहाँ पे ये कर सकते हैं सम ऑफ इट्स जीरो से निकाल लीजिए एंड माइनस बी बाई ए भी निकाल लीजिए, दोनों यहाँ पे सेम आ जाएंगे। तो आप ये बता सकते हैं कि भाई ये वेरीफाई हो चुका है। देन प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो से निकाल लीजिए अलग से इतना तक, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एंड सी बाई ए भी निकाल लीजिए, ठीक है, और ये दोनों मिल गए तो आप ये बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम है तो ये वेरीफाई हो चुका है। एंड दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है आपका, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहले से आपको सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो आपको पहले से दिया होगा क्वेश्चन में, ये पहले से होगा अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू, ये पहले से आपके क्वेश्चन में होंगे। आपको यहाँ से पोलिनोमियल को फॉर्म करना है, दैट मीन्स पोलिनोमियल आप खुद बनाएंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो चलिए क्वेश्चन कैसे होता है देख लेते हैं यहाँ पे। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए 1/4 एंड -1 ये आपके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो है ना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वो 1/4 हो रहा है, ये पहले जो है वो सम के लिए है एंड सेकंड पे जो -1 है वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा -1 है। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से दी गई है कि अल्फा प्लस बीटा दी गई है, अल्फा इंटू बीटा दी गई है, तो उससे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा वो आपके फॉर्मूला के हिसाब से माइनस बी बाई ए होगा, या फिर आप इससे पहले जो रिलेशनशिप पढ़े हैं उसमें आप देखें कि वो माइनस बी बाई ए होता है। सो माइनस बी बाई ए की वैल्यू 1/4 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा जो जिसको आप -1 ले रहे हैं वो एक्चुअली सी बाई ए है, वो सी बाई ए है। तो यहाँ पे देखिए नीचे ए की वैल्यू यहाँ पे 4 इंडिकेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे 4 नहीं है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे 1/4 एंड -1 इन दोनों को हमें इस तरह से फॉर्म करना है कि उसके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो जाए। यहाँ पे 4 है तो इस -1 के नीचे भी हमें इस तरह से कुछ नंबर्स लाने हैं जैसे कि यहाँ पे नीचे 4 आ जाए। तो इसका टेक्निक क्या है, तो आप पहले देखेंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हम इसको बाय 4 के हिसाब से लिख सकते हैं कि नहीं। तो ऑब्वियसली -1 को हम अगर इस तरह से लिखेंगे -4/4 तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू -1 रहेगा और नीचे आपका 4 आ जाएगा। नीचे 4 आने से क्या होगा कि यहाँ पे a की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे भी a की वैल्यू को हम 4 के साथ सेम करेंगे तभी जाके ABC को हम डिस्टिंक्टली निकाल पाएंगे। तो आप देखिए पहले कि भाई -b/a जो कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 था एंड c/a जो है आपका -1 है, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई किए कि -1 को चलिए लिखते हैं -4/4 ताकि ये जो नीचे यहाँ पे 4 है यहाँ पे भी 4 आ जाए।
तो इस हिसाब से यहाँ पे ये स्टेप करने हैं आपको कि -b/a की वैल्यू 1/4 था, c/a की वैल्यू जो -1 है उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई किए हैं, जिसको हम लिखेंगे -4/4, जिसका वैल्यू वही -1 ही है, ताकि यहाँ पे 4 बिल्कुल सेम आ जाए। बस यही स्टेप को आपको ध्यान देना है कि दोनों जगह पे जो डिनोमिनेटर होगा उसको आप सेम कर लीजिए। सेम अगर कर लेते हैं, सेम करने के लिए आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को सेम करने के बाद आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि भाई a की वैल्यू आप 4 ले सकते हैं, b की वैल्यू कितना ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए -b कैन बी रिलेटेड टू 1, -b कैन बी रिलेटेड टू 1, सो ओनली b इज -1। सो यहाँ पे आप b की वैल्यू को -1 ले सकते हैं। एंड c जो है आपका, c की वैल्यू आप कोशिश कीजिए जो नेगेटिव नंबर से आप ऊपर रखने के लिए, तो c की वैल्यू आपका -4 आएगा। सो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि a की वैल्यू को 4 ले सकते हैं, b की वैल्यू को -1 ले सकते हैं, c की वैल्यू को -4 ले सकते हैं। एंड उसी हिसाब से जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, a के साथ आपको x² रखना है, b के साथ आपको x रखना है, c आपका कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, सो यहाँ पे 4 है तो 4x² लिखेंगे, -1 है तो -1x लिखेंगे, और जिसको खाली आप x लिखते हैं, एंड कांस्टेंट टर्म जो है आपका -4 है। सो 4x² -x -4 इतना ही होगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये ओनली एक पॉसिबिलिटी है, दिस इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। आप चाहे तो इसको 1/4 को ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर 2 नीचे 2 मल्टीप्लाई करके 2/8 लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे भी 8 -8/8 बना सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का भी वैल्यू देखिए वही होगा, सेम हो रहा है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे आप a की वैल्यू को 8, b की वैल्यू को आपको -2, c की वैल्यू को आपको -8, इस हिसाब से लेके यहाँ पे और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। सो दिस वन इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, इससे भी और पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। सो ये तो हो गया एक छोटा सा डिस्कशन, इसको आप ठीक से ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे किए हैं। यहाँ पे नीचे 4 था तो यहाँ पे नीचे 4 लाने के लिए ही इसको मॉडिफाई किया गया है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला सेकंड में ऊपर उस क्वेश्चन को लिख दिए हैं हम, ये वाला 2 and 1 √2 and 1/3। सो अल्फ़ा प्लस बीटा √2 दी गई है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 दी गई है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b/a जो होता है फॉर्मूला के हिसाब से, उसकी वैल्यू ओनली √2 दी गई है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, जिससे आप 1/3 है। तो यहाँ पे नीचे 3 आ रहा है, बट यहाँ पे a की जगह पे देखिए नीचे डिनोमिनेटर पे √2 के नीचे क्या हो सकता है, ओनली 1। सो हम 3 यहाँ पे किसी तरह से दोनों जगह पे सेम करना है। तो यहाँ पे 3 है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो नीचे 1 है तो उसको 3 करने की, तो क्या करेंगे हम, नीचे भी 3 ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो अभी जो ऊपर खाली √2 था, हमें उसको लिखना है 3√2/3। देखिए 3 कैंसिल आउट होके वही सेम √2 आएगा, वैल्यू सेम है, बस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम 3 मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ताकि यहाँ पे जैसे 3 था यहाँ पे भी 3 आ जाए। तो अभी a की वैल्यू आप 3 ले सकते हैं, एंड b की वैल्यू -3√2 ले सकते हैं, क्योंकि -b की वैल्यू 3√2 दिखा रहा है, तो आप b की वैल्यू -3√2 लेंगे, एंड c की वैल्यू यहाँ पे ऊपर 1 है तो आप ऊपर 1 ले जाइए। तो ये एक वन पॉसिबिलिटी है कि a b c इतने हो सकते हैं। अभी a की जगह पे 3 लेके आप पॉलिनोमियल बनाएंगे तो 3x², एंड b की जगह पे -3√2 लिख के ये हो गया आपका x वाला टर्म, एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म +1 है तो आप +1 लेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी हुआ कि ये पॉलिनोमियल बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कई सारे और पॉलिनोमियल बना सकते हैं। एंड आपकी जो एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज देखेंगे उसमें इस तरह का 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वेरीफाई करने के लिए दी गई है, जो इस हिसाब से कर सकते हैं आप एग्जाम्पल के हिसाब से। एंड नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह का कई सारे क्वेश्चन हैं, इन दोनों को आप कंप्लीट कीजिए। एंड ये हो गया आपका नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट। क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेटेड अगर आप उसके रिलेशन जानना चाहते हैं तो उसमें फॉर्मूला दी गई है, उसको भी देख के आप सीख सकते हैं। सो आप ट्राई कीजिए पहले एक्सरसाइज करने के लिए।